نیازی صاحب نے جھوٹ بولے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کیا۔ میں یہاں پر کس کس چیز کا ذکر کروں؟ 1 کروڑ نوکریاں، لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیے اس شخص نے، 50 لاکھ گھر لوگوں کے گھر گرا دیے، اپنا بنی گالہ کا محل جو ناجائز تجاوزات تھے اس کو ریگولرائز کرا دیا۔ اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تقریباً 150 پیشیاں میں اور میرے والد صاحب بھگتا چکے ہیں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب 150 زیادہ پیشیاں بھگتا چکے، جیلیں ہمارے کارکنوں نے، قائدین نے کاٹی۔ میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، صرف میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل چہرہ اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا ہے۔ کہاں پاکستان مسلم لیگ کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو انڈیکس جو تھا کرپشن کے حوالے سے پاکستان کا 127 سے 117 پہ لے کے آئے، یعنی 10 جو ڈیجٹ سے وہ کم ہوئے، شفافیت آئی، اربوں کے منصوبے لگے، موٹر ویز بنی، شہباز شریف صاحب نے بجلی کے اربوں کے منصوبے لگائے، میٹرو بسز بنی، اورنج لائنز بنی، کسان جو آج کھاد کی بوری کے لیے لائنوں میں لگ رہے ہیں، کسانوں کو 400 ارب کا پیکج دیا۔ یہ میں عمران نیازی کی طرح 1100 ارب کے کراچی والے پیکج کی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، عمران نیازی کے افسانے نہیں ہیں۔ آج یہ عمران نیازی کی جماعت کرپشن کے خاتمے کا ایجنڈا لے کے آئی تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ 1 سال میں 16 ڈیجٹ کرپشن جو ہے بڑھ گئی، 124 سے 140 کا جمپ آیا۔ یہ ہے اس کا اصل چہرہ جو قوم دیکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میڈیا دیکھ رہا ہے، اور پھر کل ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو نہیں مانتا۔ عمران نیازی جب یہ قوم بھوک کی دہائیاں دیتی ہے، بے روزگاری کی دہائیاں دیتی ہے، جب مریض چیختے ہیں کہ جو دوائیاں شہباز شریف نے مفت کر دی تھی تم نے مہنگی کر دی، کینسر کے مریض در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ مہنگائی نہیں ہے۔ یہ بے حس ہو چکا ہے اور تکبر کے اس پہاڑ پر بنی گالہ کے بیٹھا ہے جہاں پر اس کو سچ جو ہے وہ جھوٹ دکھائی دیتا ہے، جھوٹ جو ہے وہ سچ دکھائی دیتا ہے، اور اس کے جو 9 رتن ہیں وہ بھی آ کر اپنا جو ہے وہ افسانوی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے جو عوام کے دل پر مہنگائی نے زخم لگائے ہیں، جو مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہے ہیں، ان کے زخموں پر یہ نمک چھڑکتے ہیں۔ آج میں عمران نیازی صاحب آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، کان اپنے کھول کے سن لو کہ اپوزیشن نے جتنی پیشیاں کرنی تھی وہ کر لیں، اب آپ کی پیشی عوامی عدالت میں ہونے والی ہے، اور تمہارے جھوٹوں کی لسٹ جو ہے نا وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور عوام تمہارے ایک ایک جھوٹ کا حساب کیے ہوئے ہیں، اور تمہیں عوامی عدالت میں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک کسی شخص کو موت نہیں دیتا جب تک اس کے اندر کو میں بے نقاب نہیں کر دیتا۔ تو اس لیے یہ تمہارا بے نقاب ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تم نے جو صاف چلی شفاف چلی کا لبادہ جو اپنے چہرے پہ
ओढ़ा हुआ था वो उतरने को है। तुम्हारे पास झूठ बूट बोल बोल कर अब झूठ भी तुम्हारे पास बाकी नहीं बचे हैं। तुमने कौम को चेहरा दिखाना है। शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से हिसाब मांगने वाले एक सबूत पेश नहीं कर सके, और जो तुम्हारे 9 रत्नों में सबसे बड़ा रत्न था शहजाद अकबर, वो चलता हुआ अब तुम्हारे जाने की बारी आ गई है। और जब इससे पूछा जाता है कि तोशा खाने का हिसाब दो, पतली गली से निकल जाता है। इलेक्शन कमीशन में 7 साल से दरख्वास्त दे रहा है कि मेरे पोल मत खोलो, ये मेरे जो अकाउंट्स है वो लोगों में आम ना करो। ये कौन सी रियासत मदीने का दर्स देता है पाकिस्तानी कौम को? अपने हिसाब की बारी आती है तो पतली गली से निकल जाता है। आपको पतली गली से निकलने नहीं देंगे, बनी गाला से उतार कर नीचे जमीन पर लेके आएंगे इंशाअल्लाह। मैं नहीं, मेरी औकात नहीं, अल्लाह ताला लेके आएगा और अवाम को तुम्हें हिसाब देना होगा। ये कैसा नया पाकिस्तान है जिसमें जो सूबा सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करता है, लोगों को गंदम के लिए रुलना पड़ता है। ये कौन सा ऐसा सूबा बना दिया है इसके बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस है कि लोगों को चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। अब किसान, बहावलपुर के गोठों का किसान, बहावल नगर, लोधरा, मुल्तान, खानेवाल किसान चीख चीख कर दुआइयाँ दे रहा है कि गंदम की बुआई का वक्त आ गया था और आपने खाद भी किसान से छीन ली, खाद भी ब्लैक हो रही है, और फिर कहता है कि खाद की पैदावार रिकॉर्ड हुई है। और मेरे भाई नियाजी, अगर खाद की पैदावार रिकॉर्ड हुई है तो फिर किसानों को लाइनों में क्यों लगना पड़ रहा है? ये तुम्हारी एटीएम जो है ना, वो अरबों की जेबें भर रही हैं, और यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया इसने। रावी प्रोजेक्ट का अदालत ने कहा कि ये गैर कानूनी है। इमरान नियाजी, होश के नाखून ले लो। अब होश के नाखून ले भी लो तो तुम्हारा अब अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है और तमाम सियासी जमातों का ये मुसम्मा यकीन है कि अगर ये नियाजी इस मुल्क में थोड़ा वक्त और गुजार गया तो मईशत जो बिल्कुल खंडर बन चुकी है, अमन आमा की सूरत हाल आपके सामने है कि अभी हालिया वाक़या जो लाहौर में हुआ दहशत गर्दी का, जिसमें लोग शहीद हो गए, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 30% कैमरास जो हैं सेफ सिटी के वो बंद पड़े हैं। 18 अरब का जो शहबाज शरीफ साहब का मंसूबा था, ये उसको भी खंडर बना रहे हैं। यानी लोगों की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अबतर है। और बुज़दार साहब, आप भी सुन लें कि जो रोज़ 20-20, 25-25, 2-2 दर्जन लोगों को आप ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे बना रहे हैं आप पैसे लेके लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। मैं पंजाब के सूबे की आवाम को बता देना चाहता हूँ। और बुज़दार साहब, ना किसानों को अकेला छोड़ेंगे, ना पाकिस्तानी अवाम को अकेला छोड़ेंगे, और ख़ुद मैं किसानों के साथ शाना बशाना इस एहतजाज में शरीक होऊंगा। और नियाजी साहब वो कहते हैं ना, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, अब कटहरा लगेगा अवामी, और तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जो शोषा छोड़ा गया है सदात निज़ाम का, ये बात कहाँ से उठी है, किस तरह जारी है? मुस्लिम लीडरशिप इस पे क्या स्टांस है? ये ऐसा ही शोषा है जब अवाम भूख से बिलखती है, लोग शोर मचाते हैं, टॉक शोज पर पीटीआई से उनके वादे उनको याद दिलाए जाते हैं, तो ये नया शोषा छोड़ देते हैं। जिस तरह इनके झूठ ख़त्म होते जा रहे हैं, अब शोशे भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये शोबदाबाज लोग हैं, तमाशबीन लोग हैं, लोगों की बेबसी पर तमाशबीनी करते हैं, शोबदाबाजी करते हैं इनके वफाकी वज़रा। और अवाम की अदालत तो तुम्हें पकड़ेगी, लेकिन तुमने जो कौमी जुर्म किया है, अपना जो मंशूर उठा के देख लो। 126 दिन जो तुमने लोगों से वादा किया था कि मैं इंसाफ और कानून की हुक्मरानी
लेके आऊँगा तो इमरान नियाज़ी पहल करो, 4 साल होने को हैं, तोशा खाने का जवाब दे दो। फॉरेन फंडिंग में जो तुमने टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए और आज भी फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो पूरी तरह अकाउंट्स की डिटेल नहीं दी। देखो भाई, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ अदालतों में पेश हुए, शहबाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट ने जमानत दी और पूछा कि करप्शन है, नैब ने कहा जी करप्शन नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने अकाउंट्स मुजबत किए 1.5 साल, वहां पे तो किसी का जोर नहीं चलता। साफ शफाफ आइन और कानून की हुक्मरानी है। अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिली, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत नहीं लेके आ सके। तुम्हारे खिलाफ इमरान नियाज़ी, तुम्हारे खिलाफ करप्शन के अंबार हैं, सबूतों के पहाड़ हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। हमें जेलों में तुमने डाला उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इन 4 सालों में तुमने इस गरीब आवाम से जो इंतकाम लिया, इनका जो खून चूसा और तुम्हारे एटीएम्स की जेबों में अरबों रुपए गए, उनके हिसाब का वक्त आन पहुंचा है। इमरान खान के जाने का वक्त आ चुका है, ये कहना है आपका। किस तरीके से, क्योंकि ओपोजिशन के आप अहम फर्द भी हैं, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी के तहत? और मार्च में जो इमरान खान की तब्दीली की अफवाहें हैं, उसमें किस हद तक आप समझते हैं कि ओपोजिशन की क्या स्ट्रेटेजी? देखें, हम आइन की पासदारी करने वाले लोग हैं और जो आवाम के दुख दर्द इस वक्त जानता है, जो कि यकीनन इमरान नियाज़ी उन जज्बात से आरी है, क्योंकि सानिया मरी पे भी उसने दोषी आवाम को ठहराया। जब अपना जो है वो कोई भी वाक़या होता है तो बजाय इसके को कोई एक्शन लेने के वो आवाम को दोषी ठहराता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम तमाम आइनी ऑप्शन, चाहे वो लॉन्ग मार्च है, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद है, जिससे इस करप्ट, नाअहल, निकट्ठू, शोबदाबाज तमाशबीन टोले का कला कुमा हो, वो रास्ता हम असेंबलियों में भी अपनाएंगे, सड़कों में भी अपनाएंगे। और बहुत जल्द, ये कहता है ना कि मैं बाहर निकल जाऊंगा तो बहुत ख़तरनाक होऊंगा, तुम अभी भी बहुत ख़तरनाक हो, लेकिन ख़तरनाक अजाब बनकर कौम पर नाजिल हो। इमरान नियाज़ी, कौम तुम्हें अजाब के नाम से याद करेगी कि तुमने इस कौम को भूख दी, तुमने लोगों से रोज़गार छीना, अब तुमसे लोग सब कुछ छीन लेंगे और अवाम की अदालत में तुम्हें अपने झूठों का हिसाब देना पड़ेगा। बहुत मेहरबानी। लो भाई, ये पकड़ लो भाई, भैया पाल लो भाई, पाल लो माइक, भैया दिख भी